The way that two massive bodies gravitate according to Newton's laws is almost identical to the way that electrically charged particles attract or repel. In string theory, all particles are vibrations on a tiny rubber band. Physics is the harmonies on the string. Chemistry is the melodies we play on vibrating strings. And the mind of God is cosmic music resonating in multi-dimensional hyperspace. Michio Kaku. Epigenetics is an emerging field of science that studies hereditable changes caused by the activation and deactivation of genes without any change in the underlying DNA sequence of the organism. Lifestyle and perception is changing our DNA. We become like those we surround ourselves with. A mirror neuron is a neuron that fires both when an animal acts and when the animal observes the same action performed by another. Mirror neurons allow us to learn through imitation. They enable us to reflect body language, facial expressions, and emotions. Mirror neurons play an essential part in our social life. They are key for child development as well as relationships and education. How we think of ourselves is changing every cell in our body. Just by observing something, you start changing it. If you wake up feeling tired, just one positive thought will send ripples throughout the quantum field, further changing everything around you. You can change your reality by changing your thoughts. Bruce Lipton. There is a pure connection between observer and matter. Human consciousness has an effect on the molecular structure of water. If thoughts do this to water, and our body is over 90% water, just imagine what we are doing to our body with our thoughts. Dr. Masaru Emoto. Our attention span is between 6 to 10 minutes. To tap into the quantum field, we must improve our attention span. Only then can we start observing and influencing the quantum field, further molding reality around us. Attention is created through intention. The power of attention and intention is what the quantum field is all about. Science is proving that our body's ability to heal and repair itself is greatly affected by our beliefs, thoughts, emotions, and intentions, for they have profound vibrational effect upon our continually evolving genetic code. We are not controlled by genes like computer programs are controlled by code. This is a fallacy propagated by Darwinian-based scientism for almost 2 centuries. Genes are biological tendency for expression. Changing our state of consciousness can influence or even change completely the tendency for expression. When we do this, our code can actually be rewritten, and a different manifestation can be expressed. We are not the code, for we are the composers of the code. I believe the human being is an instrument for the collective soul to sing through. We are all a part of the greatest orchestra performing the most dramatic song continuously being composed by the notes we choose to play. When an instrument is tuned, harmonic resonance becomes an organizing force that transcends all other forces in the physical world. Join me and start harmonizing your body's frequency with Healy. So, good evening everybody. I hope all have come. Good evening. The session. And yes, now I request, I will be inviting both our guest speakers today, and then they will be taking the presentation forward. So we have Dr. Raghu and Dr. Ravi Narayana and Dr. Raghu Arya here as our guest speakers. And yes, to tell about both of them, because today we are talking about a Jugalbandi presentation. So here is where I would like to give the information about Dr. Ravi and Dr. Raghu. Both of them are time waiver specialists, and they have been treating patients for the past 12 years on this time waiver. And they have vast and extensive knowledge on this frequency therapy, and they have really given life to many of the people who where other doctors had given up hope on them, and these doctors had helped them to overcome whatever illness it was, and they have made these people very happy. So I invite Dr. Ravi and Dr. Raghu to come forward and speak to them. I'll be unmuting. Yes, both of them are unmuted.
Dr. Ravi and Dr. Raghu, please come before the audience and we will be talking. Thank you. So good evening, everyone. Today is a really great day because we together in one platform. आप दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। तो पहले हीली फ्रीक्वेंसी क्या होता, टाइम वेवर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। तो इसके डॉक्टर रवि सर को इनवाइट कर रहा हूँ। तो एक वंडरफुल जर्नी 1 घंटे का है, तो आप लोग इस जर्नी में हमारे साथ फ्रीक्वेंसी को एंजॉय करेंगे। सो आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर रवि। थैंक यू वन। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ये फ्राइडे के दिन शाम में आप लोगों आपका जो वैल्यूबल टाइम हमारे को शेयर करिए, इसके लिए पहले हम आपको वेलकम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा हिंदी अपना हैदराबादी हिंदी रहेगा, बट ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। इफ सम वर्ड्स थोड़े वर्ड्स ऐसा निकल गए तो भी मैं माफी मांगता हूँ बिगिनिंग में ही। मगर जो साइंस आज मैं बताने वाला हूँ, डेफिनेटली आप लोग जो पहली बार आए ये सेशन में, आज का डेट 18-11 नवंबर आपका लाइफ में डेफिनेटली आप भूल नहीं सकेंगे, इतना तो मेरा गारंटी है। अभी जो हम सब्जेक्ट सुनाने वाले हैं और प्रैक्टिकली जो दिखाने वाला है, वो आप देख के समझ के डेफिनेटली वंडर फील करेंगे। क्यों बोलते हो, ये टेक्नोलॉजी मेरे लाइफ में और कई लोगों के लिए, चंदना जी जैसा इंट्रोड्यूस करे, हेल्थ सेक्टर में कई लोगों के लिए वंडर्स क्रिएट कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम जानेंगे। सो आप लोग सबको हम वेलकम बताते हुए, चंदना जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए ना। Yes, doctor. I'm doing it. यस फ्रेंड्स, जैसा यहाँ वेलकम कर रहे हैं, हेल्थ वेलबींग एंड बैलेंसिंग। सो आज हम ऐसे एक डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। ये छोटा सा डिवाइस है, मोबाइल में भी आधे से में रहेगा और वेटलेस डिवाइस मेरे हाथ में भी दिख रहा है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसका नाम हम हीली बताते हैं। अभी तक हम कई डिफरेंट थेरेपीज हम जान चुके हैं, लाइक अपने हेल्थ को हम बचाने के लिए। लास्ट स्लाइड प्लीज। या जैसा हम जानते हैं, अपने हेल्थ को हम बैलेंस रखने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसा योगा है, सैंड थेरेपी है, लाफिंग थेरेपी है, योगा थेरेपी है, आकुपंक्चर थेरेपी है। तो ऐसे डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर्ल्ड वाइड में है अपने हेल्थ को हम हेल्दी रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और सेम टाइम जो सफरर्स है वो सफरिंग से रिलीव पाने के लिए तरह के टेक्नोलॉजीज अपने सामने आते जा रहे हैं। हम यूज करके अपना हेल्थ को बनाए रख रहे हैं। आज मैं ऐसा एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, आप कुछ करने का जरूरत नहीं। घर बैठिए, ऑफिस में बैठिए, कहाँ भी कौन से भी काम पे बैठिए, एक डिवाइस ही ऐसा एक सिस्टम बना दिया है कि इस सिस्टम से आप खुद अपने आप को घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको ताज्जुब लगेगा, विदाउट माय इन्वॉल्वमेंट। योगा में तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लाफिंग क्लब में आप जाके सबके साथ इन्वॉल्व होना है। मगर आज सभी को वो करना बोल के है, वो अच्छा है बोल के भी मालूम, मगर
आज के जो मॉडर्न और ये जो चैलेंजिंग लाइफस्टाइल में हम लोग है, सुबह से लाके रात तक भागा भागी में जॉब बिजनेस मल्टीपल काम करते करते अपने लिए अपन टाइम नहीं है, अपने लिए अपन टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। एक ही क्वेश्चन हम अपने आप को पूछे तो दिन में अपने लिए खुद के लिए हम कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे। तो आज तो एक पॉइंट बोल सकता हूँ, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, हाउसवाइफ्स के पास टाइम नहीं है, बचा हुआ है बूढ़े बाप बेचारे जो एजेड इसलिए चैलेंज रहते हैं, रिटायर्ड पर्सन्स, रिटायर्ड होने के बाद जो बचा हुआ टाइम मिलता है वो हेल्थ के लिए लगा रहे। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ बोलता हूँ, हेल्थ डैमेज होने के बाद हम स्टार्ट करना है क्या, मगर हेल्थ डैमेज ना होने से पहले स्टार्ट करना है क्या। तो फ्रेंड्स, हेल्थ डैमेज होने के बाद आपको तो मालूम है कितना सफरिंग, कितना डैमेज, कितना पैसे खर्च हो रहे, कितना अपन झेलना पड़ रहा। मगर आज मैं ऐसा अद्भुत अवकाश बता रहा हूं, इसमें आप घर बैठे आपके हाथ में एक डिवाइस लगा के आप कितना भी बिजी रहो, आपको 5 मिनट का भी टाइम ना हो, उतना बिजी रहो, फिर भी जो आपके बॉडी का हेल्थ को मेंटेन करने का एक अवसर ये डिवाइस कर लेगा। तो आपका काम ये डिवाइस करके देगा और आपका हेल्थ ये डिवाइस बचा के रखेगा। ऐसा क्या ये डिवाइस है, ये ऐसा क्या अपने को विदाउट अपना इन्वॉल्वमेंट अपने बॉडी को बनाए रखता है, अभी जानने के लिए थोड़ा हम अंदर जाएंगे। नेक्स्ट, सो ये जनरल डिस्क्लेमर है कंपनी की तरफ से। सो डिवाइस टेक्नोलॉजीज क्रॉनिक पेन, फाइब्रोमियाल्जिया, स्केलेटन पेन, माइग्रेन और डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर पे ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट, ये कंपनी की तरफ से डिस्क्लेमर है। या अभी जानेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है, उससे पहले हम एक ऐसा बंदे के नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका नाम मार्कस शिमिकी है। अभी जो हम डिवाइस बताने वाले, ये डिवाइस का इन्वेंटर है। ये इनका बारे में एक दो वर्ड मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी, अभी जो मैं डिवाइस बताने वाला हूँ, इसका डेवलपर है और ये टाइम वेवर बोल के इसका एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी को और डिवाइस को डेवलप कर चुके हैं। 26 साल पहले इंडिया को आए थे, हरिद्वार को, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, यहाँ का जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, पूजा हो, जाप हो, हवन हो, जानने आए थे। वो खुद स्पिरिचुअलिटी में जर्नी करके रियलाइज होके मॉन्क बन के 11 साल मॉन्क के वैसा रह चुके। इसके बाद इनका माइंड में एक थॉट आया, वही थॉट ये इन्वेंशन का बेस पॉइंट है। वो थॉट क्या थॉट आया बोले तो, जैसा हम बात कर रहे आप सुन पा रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस एनर्जी बोलते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी। सो बातों को क्या बोलते हैं हम, वॉइस एनर्जी बोलते हैं, बात का एनर्जी, बात करने का शक्ति। सो हम इस शक्ति को रिकॉर्ड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसी तरीके से हार्ड डिस्प्ले में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस एनर्जी है तो उसको रिकॉर्ड कर सके तो अपने बॉडी के अंदर भी एनर्जी है, हार्ट में भी एनर्जी, किडनी का एनर्जी, अपने बॉडी पूरा एनर्जी से ही है। हम काम करना, बात करना, चलना फिरना तो एनर्जी से ही हो रहा है। तो इनके माइंड में क्या पॉइंट आया बोल तो, जैसा वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे इसी तरीके से अपने बॉडी के एनर्जीज और नेचर में जो भी एनर्जीज है उसको भी सेव करे तो कैसा रहता। तो वो थॉट आने के बाद ये वो थॉट को आगे करते हुए रिसर्च स्टार्ट करके एक ऐसा वंडरफुल हार्डवेयर बनाए
वो हार्डवेयर का नाम टाइम वेवर बोलते हैं। वो हार्डवेयर का क्या काम है बोल तो अपने बॉडी के इसी तरीके से बाहर के नेचर में जो भी एनर्जीज है वो एनर्जी को स्टोर करता है। वो साइंटिफिकली डिजाइन करके प्रूव कर चुके हैं। 26 साल इस साइंस पे काम कर चुके हो। ऐसा डेवलप करे सो हार्डवेयर अभी मैं दिखाऊंगा, उसका नाम है टाइम वेवर। वो जर्मनी से स्टार्ट करके डेवलप करे। जैसा वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर है, इसी तरीके से एनर्जीज को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम वेवर बनाया। ये एनर्जीज के बारे में 25 बुक्स लिखे, एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज के बारे में 25 बुक्स लिखे, 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड में ये पब्लिश हुए। एंड ये फिजिक्स साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। ये टोटल टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर है। इसका नाम टाइम वेवर बताते हैं। उसका ही बेबी डिवाइस क्यों बोल रहे बोल तो वही टेक्नोलॉजी का डिवाइस को अपने सामने लेके आए। उसका नाम अभी हम जो बताने वाले हीली डिवाइस है, उसका बेबी डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट, या सो ये जो डिवाइस बना दिए टाइम वेवर बोल के, जो मैं बोला ना, जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ऐसा डिवाइस बनाने के बाद उस डिवाइस को पहले क्या करे बोल तो वर्ल्ड वाइड में, जैसा मेरे वैसे प्रैक्टिशनर्स 2500 डॉक्टर्स को, पहला फर्स्ट प्रैक्टिशनर नूनो नीना बोल के पोर्चुगल के एक डॉक्टर है, वो इनको जोड़ के दोनों मिलके ये साइंटिस्ट हार्डवेयर बना दिया। वो डॉक्टर क्या करा बोलते वो हार्डवेयर को क्लिनिक में पेशेंट के ऊपर ट्राई करना चालू कर दिया। कोई ना कोई तो बिलीव करना है ना। तो 26 साल पहले कोई बना दिया, अभी ये खरीद लो यूज करो बोलते कोई आगे नहीं आएगा। तो उसलिए ये मार्कस शिमी की एक अच्छा सा डॉक्टर जो नूनो नीना बोलते हैं, यहाँ दिख रहा है। यस, यू कैन शो। सो नूनो नीना बोल के एक डॉक्टर जो फर्स्ट वाला है ना, वो डॉक्टर पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। उनसे जोड़ के उनके पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। उसी तरह के एक के बाद एक डॉक्टर ये टेक्नोलॉजी को रियलाइज होते हुए एक के बाद एक ऐड होते गए ये टेक्नोलॉजी को। इस क्रम में अभी तक 2500 डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड में ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अडॉप्ट करके उनके क्लिनिक में ये टेक्नोलॉजी को उनके पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। 2500 डॉक्टर वर्ल्ड वाइड में अभी तक 20 लाख लोगों के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। मेरा लक्की क्या है बोल तो ये टेक्नोलॉजी को मैं भी 12 साल पहले सुना था। मेरे को भी ताजुब हुआ जैसा कि आपको ताजुब हो रहा है। एक डिवाइस से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट, अपना इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए अपने ट्रीटमेंट कर देगा। ये सुन के मेरे को भी जानना था और मेरे क्लिनिक के मेरे प्रैक्टिस के लिए लाना था। इसके लिए मैं जर्मनी गया, खुद ये टेक्नोलॉजी को पहचाना, जाना और मार्कस शिमी जी को मिला है। और मैं खुद वो टाइम वेवर डिवाइस को खरीद के लेके आके हैदराबाद में मेरे क्लिनिक में मेरे क्लाइंट्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया। और रिजल्ट्स 12 साल से हम अमेजिंग रिजल्ट्स, मोस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बन गया। वंडरफुल रिजल्ट्स, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डिफरेंट क्लाइंट्स पे ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी प्रैक्टिस करके वंडरफुल रिजल्ट्स हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इस क्रम में 6 साल पहले एक बोर्ड मीटिंग था। वो मीटिंग में जो ये इन्वेंटर मार्कस शिमी की एक बोर्ड मीट कॉल करके सभी डॉक्टरों को एक अच्छा सा अनाउंसमेंट दिए। वो अनाउंसमेंट क्या बोलते, ये जो साइंस है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खाली डॉक्टर और पेशेंट तक ना रखते हुए, डॉक्टर उसका क्लिनिक में ही खुद प्रैक्टिस करने के लिए ना रखते हुए, इसको एक कॉमन मैन यूज करे वैसा करना है। एक कॉमन मैन के हाथ में जाना है। इसके लिए वो क्या करा बोलतो, जो बड़ा हार्डवेयर था हम जो प्रैक्टिस करते क्लिनिक में, उसी हार्डवेयर को जो कॉमनली ये आदमी रेगुलर सफर होते हुए रहते ना,
उस बीमारियों को एड्रेस करते हुए एक छोटा सा डिवाइस कॉमन मैन खरीद सके और कॉमन मैन इजी टू यूज कर सके, डॉक्टर का नॉलेज ना होते हुए, साइंस का नॉलेज ना होते हुए, जस्ट छोटा सा डिवाइस डिजाइन करके लॉन्च करने के लिए हमारे प्रपोजल दिए। हम बहुत खुश हो गए, सभी डॉक्टर खुश हो गए। क्यों बोलते हो, साइंस इन्वेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूटिलिटी में आना, हर एक के हाथ में आना, उससे हर किसी को लाभ बेनिफिट आना, ये इंपॉर्टेंट थॉट था। सो फाइनली वो रूप लेके ये टेक्नोलॉजी एक छोटा सा डिवाइस बन के आपके सामने आया हीली के रूप में। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जर्मनी से स्टार्ट हुआ है। ये जो मार्केट शिमिकीजी है वो जर्मनी के है, तो वहाँ का ये जो R&D सेंटर है आपके सामने दिख रहा है, उनका ऑफिस है, उनका एस्टेब्लिश है। और ये टेक्नोलॉजी को लास्ट 13 साल से जर्मनी में डेवलप करके इंटरनेशनली पेटेंट करके ये पूरे जो भी टेक्नोलॉजी है, जो हार्डवेयर है, इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है, अभी आगे आगे आप जानेंगे क्या करता है सर, क्या चीज है, ये पूरा डिजाइन करके ये जर्मनी में पेटेंट्स करके जर्मनी में लॉन्च कर चुके हैं 6 साल पहले। लॉन्च करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना बोल तो कोई भी कंट्री में वहां का मेडिकल बॉडी का अप्रूवल चाहिए पड़ता। तो इस क्रम में ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव होके क्लिनिकली वंडरफुल रिजल्ट्स पाके वो क्लिनिकल डेटा और साइंटिफिक एविडेंस से ये टेक्नोलॉजी को जर्मनी में जर्मन मेडिकल काउंसिल वाले क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट दी थी। एक बार चंद्रना जी दिखाइए सर्टिफिकेट। या इसको ऑलरेडी जर्मनी में क्लियरेंस मिल चुका है क्लास 2 मेडिकल डिवाइस में। तो ये मेडिकली वहाँ प्रैक्टिस में भी है और ऑलरेडी यूज प्रमोट माने सेल्स में भी है, कोई भी खरीद के यूरोपियन कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इसी क्रम में 4 साल पहले ये टेक्नोलॉजी यूएस मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो वहां भी क्लियरेंस चाहिए था। वहां का भी यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और टेक्नोलॉजी में भी यूएस का वही वंडरफुल इमेज है हमारे वर्ल्ड में। तो इस टेक्नोलॉजी को यूएस एफडीए भी क्लियरेंस मिल गया। यूएस में भी अभी 4 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में और प्रैक्टिस में है। इसी क्रम में 4 साल पहले अपने इंडियन मार्केट में भी आया। इंडियन मार्केट में भी इसका इंडिया में क्लियरेंस हो चुका है। क्लियरेंस होके लास्ट 4 ईयर्स से 4 साल से इंडिया में भी वंडरफुल प्रमोटिंग हो रहा है, ऑलरेडी मार्केट में है और प्रैक्टिस में भी है। इस तरीके से अभी फिलहाल वर्ल्ड वाइड में 58 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये डिवाइस टेक्नोलॉजी, और ये डिवाइस लाखों लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ऐसा क्या ये चीज है इतना बैकग्राउंड लेके आया, अभी जानेंगे इसके अंदर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिवाइस यूज करके अपने बॉडी को कैसा फायदा होता है और अपने इन्वॉल्वमेंट ना लेते हुए कैसा हम अपने जो हेल्थ इश्यू से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाह रहा हूं इसके अंदर का साइंस। अभी तक हम जो भी बीमारी है ब्लड लेवल में डायग्नोस कर रहे हैं और ब्लड लेवल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल थायराइड का एग्जाम्पल पकड़ के जाएंगे। कॉमनली अभी थायराइड हर किसी को चालू हो जा रहा है। पहले बीपी था, फिर डायबिटिक हुआ, अभी इंडिया का 3rd हाईएस्ट बीमारी थायराइड हो रहा है। तो थायराइड के ही एग्जाम्पल लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी का बाल झड़ रहे, आंखों में जलन हो रहा है, गला सूख रहा है, मोटापन आ गया है, वजन बढ़ रहा है, तो वो सिम्टम्स पूरा देख के पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जनरली हम क्या करते हैं, सफरिंग्स देख के डॉक्टर्स के पास अप्रोच होते। तो डॉक्टर जी क्या करते हैं, जनरली ब्लड टेस्ट लिखते हैं कि थायराइड का टेस्ट कराओ एक बार सिम्टम देख के, T3 T4 TSH। हम क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल देते हैं,
ब्लड के अंदर हम उसको डायग्नोस करते हैं TSH लेवल कितना है। अगर TSH लेवल बढ़ के आ गया तो हम डिक्लेयर करते हैं कि थायराइड हो गया। मैं यहाँ एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट क्या बोल तो, सिम्टम पहले चालू हो गए, फिर ब्लड में आपको थायराइड मिल गया, राइट। फिर थायराइड कब स्टार्ट हुआ? जिस दिन ब्लड में आपको आया उस दिन स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं क्या बोलते जिस किसी को भी ब्लड में शुगर और ब्लड में थायराइड आया बोलते, उससे 3 से 5 साल पहले ही वो बीमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गया हम बोलते। कैसा बता सकते? कोई भी ऑर्गन, थायराइड एक ग्लैंड है, वो डैमेज होने से पहले उसके अंदर, ब्लड के अंदर अपन जाएंगे तो ऑर्गन रहेगा। ऑर्गन डैमेज होने से पहले उसके अंदर गए तो टिश्यू रहेंगे, टिश्यू डैमेज होंगे। टिश्यू डैमेज होने से पहले उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स डैमेज होंगे। मॉलिक्यूल्स डैमेज होने से पहले उसके अंदर के एटम्स डैमेज होंगे। एटम्स डैमेज होने से पहले उसके अंदर के सबएटॉमिक पार्टिकल्स डैमेज होंगे। माने अपने को कोई भी बीमारी अपने को स्टार्ट हुआ बोले तो उसके पहले क्या होना है? अंदर सेल्स डैमेज होना है। सेल डैमेज होने के बाद टिश्यू डैमेज होने का ऑर्गन डैमेज होने के बाद प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने के बाद ब्लड में आता है। मगर सिम्टम तो चालू हो जाते, ब्लड में नहीं आता पहले। ब्लड में आने तक 3 से 5 साल लगेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी लो, थायराइड भी लो, शुगर भी लीजिए, कोई भी बीमारी है पहले सेल से स्टार्ट होता है, डैमेज होने के बाद ब्लड में आता है। इतना चीज हम समझ लिए तो बस। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप को, इतने सालों से हम ब्लड में डायग्नोस कर रहे हैं, ब्लड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर ब्लड में डायग्नोस करके ब्लड में ट्रीटमेंट करने से अच्छा सेल को ही डायग्नोस करके सेल को ही ट्रीटमेंट करे तो कैसा रहता? सेल को ही ना डैमेज हो ऐसा रिकवर कर ले तो कैसा रहता? एक बार सोचिए। अभी तक तो हम ऐसा सोचे नहीं, करे भी नहीं, ऐसा साइंस भी नहीं है। सेल हेल्थ क्यों? बॉडी पूरा सेल से बना है ना। फॉर एग्जाम्पल घर को अच्छा रखना बोल तो दीवारें अच्छे रहना, दीवारें मजबूत रहना बोल तो ईंटें अच्छे रहना, ईंट स्ट्रांग रहे तो घर भी स्ट्रांग। तो इसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर अगर सेल ही नॉर्मल है, सेल ही हेल्दी है, तो बीमारी कैसा आएगा? अगर आएगा तो भी सेल को ही नॉर्मल कर दे तो बीमारी कैसा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो सेल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सेल को नॉर्मल रखने के लिए एक अद्भुत वंडरफुल टेक्नोलॉजी, सेल हेल्थ को बैलेंस करने वाली टेक्नोलॉजी अभी आपके सामने आया हीली के माध्यम से। तो अभी जानेंगे। अभी ऑर्गन को भूल जाइए, अपने बॉडी में सिस्टम्स को भूल जाइए, एक ही एक चीज याद रखिए, हेड से लेके टो तक पूरा बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, पूरा बॉडी सेल से बना। अभी हम क्या करेंगे, ये टेक्नोलॉजी से अपना सेल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। तो अभी आपको एक डाउट आएगा, थायराइड के लिए तो हमारे पास थायराइड का मेडिसिन है, थायरॉक्सिन है, ट्रॉक्सिन, थायरोनॉल। शुगर के लिए इंसुलिन है, बीपी के लिए दवा है, मगर सेल के लिए क्या दवा होगा? सेल को नॉर्मल करना है बोले तो कौन सा दवा यूज करना पड़ेगा? सो सेल को नॉर्मल करने के लिए दवा का जरूरत नहीं है, उसको एनर्जी चाहिए, उसका एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। क्यों बोले तो सेल्स आर मेड अप ऑफ एनर्जी। अपने बॉडी के अंदर का सेल के अंदर गए तो वो सेल कैसा बना बोल के देखे तो वो एनर्जी से बना। कैसा बोल सकते हैं डॉक्टर साहब? या बोलेंगे हम, छोटा सा एग्जांपल, हम खाना खाए, पानी पिए, हवा लिए, ये पूरा अंदर जाके क्या होता? फाइनली वो शक्ति होता है। वही शक्ति यूज करके ना हम चल पा रहे, दौड़ पा रहे, खाना खा पा रहे, बात कर पा रहे। ये शक्ति जब तक है अपने अपन बॉडी है, ये शक्ति नहीं तो बॉडी नहीं है। इसी तरीके से अपना बॉडी जो भी लिया, फाइनली वो सेल को पहुंचना है, वो सेल का मेंटेन करना है एनर्जी। जब सेल का एनर्जी नॉर्मल है, आपका बॉडी नॉर्मल है। सेल एनर्जी डैमेज हो गया तो अपना बॉडी का सेल्स डैमेज होना चालू हो जाता। फिर सेल का एनर्जी को नॉर्मल करना बोले तो क्या करना?
सेल का एनर्जी को नॉर्मल करने के लिए सेल का जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सेल का एनर्जी कैसा बैलेंस रख सकते हैं, तो इसके अंदर आपको दिखाया है ओरिजिनली अपना बॉडी के अंदर का सेल का वोल्टेज है -70 मिलीवोल्ट, सेल का स्ट्रक्चर है 12 मिली माइक्रॉन्स। कई रीजनों से, जो स्ट्रेस भी हो, टेंशन हो, इम्प्यूरिटीज हो, हम हवा से, पानी से क्या अंदर जो भी ले रहे वो पूरे अंदर जा रहे, अपने बॉडी के अंदर जाके बॉडी के यूज भी हो रहे, थोड़े बाहर भी जा रहे, थोड़े बाहर बॉडी के अंदर बच भी जा रहे, उसको इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। वो इम्प्यूरिटीज जाके सेल में जमा हो जा रहा है, सेल के बीच में जमा हो रहा, टॉक्सिन्स जमा हो जा रहे। इसी तरीके से स्ट्रेस, टेंशन, इमोशन से सेल के ऊपर इफेक्ट हो रहा। अपन गुस्से में आए तो सेल गुस्से में आ रहा, अपन रोते तो सेल रो रहा अंदर। सेल इज नथिंग, अपना बॉडी का पूरा बच्चे समझिए आप, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अपन जो भी इमोशंस हो, जो भी कैरेक्टर्स हो, जो भी फीलिंग्स हो, सब सेल कैरी करता है। इस तरीके से जब डिफरेंट रीजन से वो सेल क्या होता है, डैमेज होना चालू होता है। डैमेज होने से उसका सेल का वोल्टेज कम होता है। सेल का वोल्टेज कम होके -70 मिलीवोल्ट से -50 मिलीवोल्ट को इसका सेल का जब वोल्टेज गिर जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक सेल, माने उसको बीमारी चालू हो गया है। उससे भी थोड़ा वोल्टेज कम होए तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, उस सेल का स्टेज पेन चालू होता। माने अपने बॉडी में कहाँ भी पेन हुआ तो ये समझ लीजिए कि वहां सेल का डैमेज चालू हुआ। पेन डिजीज नहीं होता है, उसको ट्रीटमेंट मत करिए पेन किलर से। पेन किलर खाली पेन को दबा देता है, आपको मालूम नहीं पड़ने देता है कि ब्रेन को, पेन को कट कर देता है, मगर अंदर का डैमेज को क्लियर नहीं करता है। इसलिए जब डाले जब आपको अच्छा लगता है, उसका इफेक्ट होने के बाद फिर पेन वापस बढ़ के आता है। ये तो हर कोई एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, वो अगर सेल को आप रिकवर नहीं कर रहे तो पेन के बाद क्या होता है, अपने अंदर का सेल्स में इंफ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग आता है, उसका साइज बढ़ जाता है, फिर एडिमा होता है, पानी रिटेन होता है, फिर ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है, फिर सेल डिवीजन होता है, जैसा चार्ट में दिखा रहा है ना, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। फाइनली सेल डेथ होता है। सेल डेथ होने के बाद क्या होता है, जैसा अभी लास्ट स्लाइड में हम बताए ना, सेल डेथ के बाद क्या होता है, टिश्यूज डैमेज होना चालू होते हैं। टिश्यू डैमेज होने के बाद ऑर्गन डैमेज होता है। ऑर्गन डैमेज होने के बाद प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होने के बाद ब्लड में आता है। इसके पीछे इतना साइंस है। हम कहाँ काम कर रहे, कहाँ काम करना है। हम काम कर रहे लास्ट में, काम करना है फर्स्ट में बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट क्या है, सेल, लास्ट क्या है, ब्लड। हम ब्लड तक वेट क्यों कर रहे हैं, सेल को ही क्लियर क्यों ना करे, सेल हेल्थ को ही क्यों ना मेंटेन करे। मगर ऐसा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सामने आया क्या, नहीं। मगर आज ये वंडरफुल हीली डिवाइस टेक्नोलॉजी अपने बॉडी के अंदर का सेल का हेल्थ ही मेंटेन करता है। कैसा करता है अभी देखेंगे। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जैसा बताया ना, अपने बॉडी के अंदर सेल का हेल्थ को मेंटेन करना बोल तो सेल का जो एनर्जी है उसको हम बैलेंस रखना, इतना तक हम जान चुके हैं। सेल का एनर्जी को बैलेंस करना बोल तो क्या करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी हीली डिवाइस में बन के है। सो कोई भी सेल का एनर्जी जनरेट होना बोल तो किसी चीज को वाइब्रेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी कैसा पैदा होता, थोड़ा डीप में जाके और थोड़ा अंदर जाएंगे। सेल हेल्थ के लिए एनर्जी को हम बैलेंस करना बोल के मालूम करें, मगर एनर्जी को बैलेंस करना बोल तो क्या करना, एनर्जी को बैलेंस करना बोल तो एनर्जी कैसा पैदा होता, कोई भी एनर्जी कैसा पैदा हो तो वाइब्रेट करने से वाइब्रेट होता। फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम फिजिक्स लैबोरेटरी में एक पेंडुलम अपने हाथ में देते हैं, उसको हम टेबल पे टैप करके कान के पास लगाए तो वो वाइब्रेट होता है, तो साउंड आता है। हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को आप वाइब्रेट करने से उससे क्या होता है, साउंड आया, माने एनर्जी आया। साउंड बोलते हो सुनने के लिए, मगर हम एनर्जी बोलते हैं किसी चीज को हम वाइब्रेट करने से, उससे हम एनर्जी पा सकते हैं। सेल का वाइब्रेशन को अगर बैलेंस करें तो
सेल को करेक्ट वाइब्रेट करे तो, ट्यून करे तो वो एनर्जी भी ट्यून हो जाएगा। ये सेल को वाइब्रेशंस को नॉर्मल करने के लिए अभी जो मैं बताया ना, टाइम वेवर बोल के टेक्नोलॉजी में 12 साल से जो एक्सपेरिमेंट करके अपने बॉडी के हर ऑर्गन का सेल्स को बैलेंस करने वाले, हार्ट का सेल का एनर्जी कितना होता है, किडनी का सेल का कितना एनर्जी होता है, हर सेल पेन का एनर्जी क्या होता है, डिप्रेशन का एनर्जी क्या होता है, माइग्रेन का एनर्जी क्या होता है, हर चीज का एनर्जीज को बैलेंस करते हुए वो एनर्जीज को क्या करे बोल तो बैलेंस करने वाले एनर्जीज को वो टाइम वेवर डिवाइस में स्टोर कर दिए। पेशेंट के ऊपर क्लिनिकली ट्रायल करके वो एनर्जीज को स्टोर कर चुके हैं। माइग्रेन का एनर्जी, डिप्रेशन का एनर्जी, पेन का एनर्जी, अभी मैं बताने वाले क्या क्या एनर्जी स्टोर करें, वो एनर्जीज पूरे स्टोर करें। स्टोर करके वो स्टोर करे एनर्जीज को हम क्या करते बोल तो ये क्लाउड आपके सामने दिख रहा है, ईली एडवाइजरी क्लाउड। वो क्लाउड से जर्मनी में है वो हार्डवेयर, वहां से हम सर्वर के थ्रू अपने मोबाइल में हीली ऐप बोल के एक ऐप को आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट करके इंटरनेट थ्रू वाईफाई ऑन करिए और इंटरनेट ऑन करिए, ऐप ओपन करिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ईली ऐप आपका मोबाइल पे आ जाएंगे। अभी जो मैं टाइम वेवर में फ्रीक्वेंसीज है बोल के बोला, स्टोर करने की कैपेसिटी है बोल के बोला, वो स्टोर करे सो फ्रीक्वेंसीज पूरे जो रिसर्च करके स्टोर करे सो एनर्जीज पूरे जर्मनी से अपने मोबाइल में आ गए थ्रू इंटरनेट माध्यम से। अभी आपको एक डाउट आएगा, इंटरनेट बोल रहे तो कोई रेडिएशन का इफेक्ट होगा क्या? ये भी क्लियर करूंगा मैं अभी आपको। वो जो ऐप डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। एक बार अगर आप डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, फिर भी आपको ऐप खुलेगा, ऐप काम करेगा, खाली डाउनलोड करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट से ये टेक्नोलॉजी कोई लेन देन नहीं, तो कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं, जीरो। नेक्स्ट, मोबाइल में आ गए पूरे। मोबाइल में आने के बाद ये फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, मोबाइल से जो हार्डवेयर है आपके सामने दिखा रहा ना, हमारे हीरो, आज पूरा सब्जेक्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। हीली यही डिवाइस है, मेरे हाथ में भी है और आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रहा है। मोबाइल से ये हार्डवेयर को ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के लिए क्या करते बोलते हम, ट्रांसमिट करने का माध्यम है ब्लूटूथ से ट्रांसफर होता है प्रोग्राम। तो ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो तो फिर एक डाउट आ सकता है, आप ब्लूटूथ भी रेडिएशन हो सकता क्या? एक बार आप प्रोग्राम ट्रांसमिट करने के बाद ये डिवाइस में आप ब्लूटूथ ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, फिर भी ये डिवाइस काम करेगा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ब्लूटूथ से और ये डिवाइस से कोई लेन देन नहीं, खाली ट्रांसमिट करने के लिए 1 सेकंड के लिए चाहिए। एक बार प्रोग्राम रन चालू हो गया तो बंद कर दो, तो ब्लूटूथ से ये काम नहीं कर रहा। फिर जाके ये डिवाइस को क्या करना है, अपने बॉडी को कनेक्ट करना है। बॉडी को कनेक्ट करने के लिए ऐसा ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे, एक मैं हाथ में मैं भी लगाया हूँ अभी, प्लस इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड दोनों लगाना है। ये डिवाइस को कनेक्ट करना है 2 वायर, जैसा आप पिक्चर में दिखा रहे हैं यहाँ, प्लस सिंबल एंड माइनस सिंबल, 2 सिंबल रहेंगे, 2 वायर लगा दीजिए और डिवाइस को कनेक्ट करके अपने बॉडी को कनेक्ट करना। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद अभी फॉर एग्जांपल थायराइड का ही हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, सो वही बात को हम रिपीट करेंगे। जब आप ये मोबाइल से थायराइड प्रोग्राम रन करते तो थायराइड का प्रोग्राम जर्मनी से क्लाउड से मोबाइल पे आ गया, मोबाइल से आप डिवाइस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिवाइस से अपने बॉडी को ट्रांसमिट करना है थायराइड प्रोग्राम। जब थायराइड प्रोग्राम हम ट्रांसमिट करने से क्या होता बोलते हो, अपना बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है, अपना बॉडी से एनर्जी लेता है, अपने बॉडी में ही सप्लाई स्टार्ट कर देता है। बीच में ये डिवाइस क्या करता, जो प्रोग्राम आप सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल थायराइड प्रोग्राम सिलेक्ट करिए, तो ये क्या करेगा, एनर्जी अपने बॉडी से लेके जो सेल्स डैमेज होने से अपने को थायराइड हुआ
वो सेल को ये एक्टिवेट करना चालू कर देता है। सिक सेल माने डैमेज हुए सेल्स को एनर्जी देके वो सेल्स को नॉर्मल सेल्स में बना देता है। इस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता, रोटेशन, अपना एनर्जी अपने को रोटेशन स्टार्ट, एनर्जी लेता है, थायराइड फ्रीक्वेंसी में रन करता है, अपने बॉडी को सप्लाई करता है, एनर्जी लेता है, थायराइड फ्रीक्वेंसी में रन करता है, फिर वो अपने बॉडी को सप्लाई करता है। ऐसा सप्लाई करने से जो सेल्स को एनर्जी ना पहुंच रहा है वो सेल को फिर वापस एनर्जी पहुंच के, जो सेल्स डैमेज होने से थायराइड हुआ वो सेल्स नॉर्मल होके थायराइड नॉर्मल में आना चालू हो जाता है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी अपन क्या कर रहे हैं, हीली से ले रहे, एनर्जी अपने बॉडी से ले रहे, लेके ये दोनों के कॉम्बिनेशन में अपने बॉडी को हील कर रहे, अपना बॉडी का एनर्जी अपने को हील कर रहा है। मगर इतने फिर ये डिवाइस लगाने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बोल तो, जो सेल्स को डैमेज हुआ वो सेल को रिकवर करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए एनर्जी को। एक्चुअली रोज बचपन में तो पूरा एनर्जी ऑर्गन को, सेल को पहुंचता था, अपना बॉडी भी हेल्दी रहता था। अभी तक हमें जो लोग बताया ना, टॉक्सिन्स हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, सेल्स को डैमेज करके वो सेल को पहुंच रहा नहीं, एनर्जी ना पहुंचे तो वो डैमेज होकर अपने को बीमारी डेवलप हो। या हम क्या कर रहे हैं, फिर वापस उसको एनर्जाइज करके वो सेल्स को नॉर्मल सेल्स में बना के अपने बॉडी का ऑर्गन को नॉर्मल करके हम हेल्दी रह पा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल साइंस है देखिए, समझने में इतना आसान और टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया, और रिजल्ट देखो तो आप वंडर फील करेंगे। अभी एक रिजल्ट भी मैं दिखाने वाला हूँ आपके सामने, प्रैक्टिकल डेमो चंदना जी को मैं व्हाट्सएप में भिजाया, अभी वो दिखाएंगे। ये केस में रिसेंटली एक टफेस्ट केस था, वो हीली से कैसे इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट, ये इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरेंट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, माने अपने बॉडी का नीड और अपने बॉडी का सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो वोल्टेज है, उसको एनालाइज करते हुए बॉडी टू बॉडी डिफरेंट थायराइड बीमारी एक है, मगर बॉडी टू बॉडी सफरिंग अलग रहेगा, बॉडी टू बॉडी सिम्टम्स अलग रहेगा। उसके सिम्टम के हिसाब से, सफरिंग के हिसाब से, अपने बॉडी का नीड के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करके रियल टाइम मॉनिटर करते हुए सप्लाई करके वो फ्रीक्वेंसी से ट्रीटमेंट करता अपने बॉडी के सेल्स को। इट इज अ स्टिमुलेटर फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेबलेट्स। नेक्स्ट, इसको यूज करने के लिए अपने को 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स जब डिवाइस खरीदते हैं उसके साथ मिलते हैं। एक ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड हाथ को लगाने का, ईयर की इलेक्ट्रोड कान को लगाने का, एडेसिव इलेक्ट्रोड चिपकाने वाले, और साइंस और आगे बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी और डेवलप होते हुए, डॉक्टर साहब ये वायर्स लगा के कहाँ बैठेंगे हम, तो उन लोगों के लिए एक कॉइल बोल के नया ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करें, उसको टेस्ला कॉइल बताते हैं। ये टेस्ला कॉइल क्या करना है, सिंपल वो डिवाइस को अटैच करके अपने जोब में लगा लो, बॉडी को अटैच करके रख दे तो बस है। पैंट के जोब में लगाओ, शर्ट पे जोब में लगाओ, कहाँ भी आपके बॉडी को अटैच करके रखो, वायर पहनने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये कॉइल को हम टेस्ला कॉइल बोलते हैं। सो जो माइक्रो करंट है वो माइक्रो करंट को ये मैग्नीफाई करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके वो थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अपने बॉडी को स्टिमुलेशन करता है। वायर से डायरेक्ट इलेक्ट्रोड लगा के भी स्टिमुलेशन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉइल से भी आप स्टिमुलेशन ले सकते हैं। एक कॉइल एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, अटैचमेंट है, वो एक्स्ट्रा पैसे लेके हम खरीद सकते हैं। फिलहाल ये डिवाइस के साथ तो ये 3 अटैचमेंट आपको मिलेंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करना और कौन से फ्रीक्वेंसी को कौन से टाइप ऑफ अटैचमेंट चाहिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जब प्रोग्राम रन करते हैं आपके मोबाइल के अंदर ये दिखेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड लगाना है, आप ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड लगाना है क्या, एडेसिव इलेक्ट्रोड लगाना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। वहां जो पिक्चर दिखता है उसके हिसाब से, वो पिक्चर के हिसाब से आप वो पहनना है। और दूसरी बात, यहाँ टाइम भी फिक्स है, कोई टाइम का आप कुछ सेट नहीं कर सकते, सेटिंग कुछ नहीं है। सिंपली फॉर एग्जांपल आपको माइग्रेन है 20 मिनट का प्रोग्राम है, डिप्रेशन है 20 मिनट का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपको स्प्लीन एंड पैंक्रियास डायबिटिक का प्रोग्राम है, वो 60 मिनट्स का प्रोग्राम है। इस तरीके से प्री डिफाइंड है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम आपको रन करना है उसका टाइम फिक्स है, वो फिक्स टाइम में हम प्रोग्राम रन करते हैं। सिंपल, आपको मोबाइल से अटैच करना है, अटैच करके वो प्रोग्राम आपके बॉडी में रन करना है। नेक्स्ट, अभी जानेंगे
क्या क्या प्रोग्राम्स माने कौन से बीमारियों पे कौन से अपने सफरिंग को ये बैलेंस करता है, किस चीज में काम करता है। सो मेरे ख्याल से अभी तक पूरा साइंस आपको समझ में आ गया होगा। जर्मनी से स्टार्ट हुआ, साइंटिफिकली प्रूव हुआ, क्लिनिकली अप्रूव हुआ, मेडिकल काउंसिल से भी क्लियर होके, यूएस एफडीए जर्मन मेडिकल काउंसिल क्लियर होके अपने बॉडी का सेल हेल्थ को मेंटेन करने वाला, सेल हेल्थ को मेंटेन करते हुए सेल का एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये हीली फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी है। ये स्टिमुलेटर है, जर्मनी से फ्रीक्वेंसी लेता है, अपने बॉडी से एनर्जी लेता है, दोनों के कॉम्बिनेशन के अपने बॉडी के अंदर जो सिक सेल्स है उसको नॉर्मल सेल्स में बढ़ा के, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से अपने बॉडी को बैलेंस करने वाला वंडरफुल, इनोवेटिव, नो साइड इफेक्ट, नो सफरिंग, नो डैमेज टेक्नोलॉजी है। सो अपना इन्वॉल्वमेंट ना रहते हुए, अपन कुछ करने का जरूरत ना होते हुए, जॉब करो, बिजनेस करो, आपके काम करते करते ये डिवाइस को अपने बॉडी में लगा के हील भी, ट्रीट भी करते जाइए। ऐसा अद्भुत टेक्नोलॉजी में कौन से बीमारी पे काम होता, ये बताने के लिए मैं डॉक्टर रघु जी को इनवाइट करना चाह रहा हूँ आपके सामने। अभी आपको बताएंगे कौन से बीमारी पे ये काम करता है, कैसा हेल्प करता है अपने बॉडी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल सेशन। आप मेरे ख्याल से मेरे को जितना हो सके उतना सिंपलीफाई करके आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सका हूँ। तो अभी जानेंगे ये टेक्नोलॉजी के पीछे अपना क्या क्या बीमारी को हटता है। ओवर टू डॉक्टर रघु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रवि। आज हम बहुत खुशी है कि मैं डॉक्टर रवि जी से साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम दोनों मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब तक अब साइंस मालूम हुआ, कहाँ से शुरू हुआ मालूम हुआ, कैसा शुरू हुआ मालूम हुआ। अभी जानेंगे इसमें क्या क्या प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के बारे में एक बार स्लाइड देखेंगे। चंदना जी, एक बार प्रोग्राम स्लाइड प्लीज। सो इसमें फर्स्ट प्रोग्राम है, इसका नाम एसेंशियल। इसमें रहेंगे चंदना जी, स्लाइड प्लीज। Minute, sir. I'm sharing it one. नो प्रॉब्लम। Just give me a few minutes. अभी हम देखना चाह रहे हैं कि देखने वाले हैं कि दुनिया में डिजिटल फ्रीक्वेंसीज माने डिजिटल मेडिसिन, जैसे आइंस्टीन का ड्रीम था फ्यूचर इज एनर्जी मेडिसिन। तो एनर्जी मेडिसिन के बारे में मालूम हुआ। अभी देखेंगे एनर्जी मेडिसिन में जो फ्रीक्वेंसीज है वो कौन से फ्रीक्वेंसीज है, और वो फ्रीक्वेंसीज में अपने क्या बेनिफिट होने वाला है अभी हम देखेंगे। Are you able to see, sir? Yeah, but you should open slide. Okay. Yes. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, इसका नाम है हीली गोल्ड। इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने मिलेंगे। उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का नाम प्योर में होगा अपना बॉडी को, सेल को प्यूरिफाई करना। आप लोगों को सबको मालूम है अपने बॉडी के सेल में हम टॉक्सिन्स लोड कर रहे हैं, सेल में पोल्यूशन लोड कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, सेल का एनर्जी कम हो जा रहा है। सेल एनर्जी कम हुआ तो सेल क्या करेगा, वीक सेल को प्रोड्यूस करेगा। जब सेल वीक हो गया, जैसे डॉक्टर रवि सर अभी तक बताए थे, तो ऑर्गन डैमेज होगा। तो अपने बॉडी के सेल को क्लीन करने के लिए ये वंडरफुल प्रोग्राम है, इसका नाम प्योर। तो ये प्रोग्राम रन करने के लिए हम जस्ट जैसे डॉक्टर रवि जी बताए थे, हैंड बैंड्स लगाना है और ये प्योर प्रोग्राम को ऑन करना है। ये टोटल 52 मिनट्स का प्रोग्राम रहेगा। तो ये प्रोग्राम टोटल रन करने के बाद अपने बॉडी का सेल का कम्युनिकेशन आएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी प्योर। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसा काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ। अगर आप 5 बजे अलार्म लगा के डेली उठना शुरू करें तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद आपको आदत गिरेगा कि 5 बजे उठने का। yes. इसी तरीके से अपने बॉडी का जो सेल्स है वो काम कर रहे हैं कि अपने बॉडी का सेल्स टॉक्सिन्स क्लीन करने का काम कर रहे हैं, थोड़े सेल्स।
मगर थोड़े दिन के बाद जैसे एज आते गया, हम सेल्स को वीक कर रहे, तो प्योर प्रोग्राम करना वो भूल गए। इससे क्या हो रहा, अपने बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जा रहे। तो ये प्योर प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी यूज करने से अपने बॉडी का सेल्स को हम कमांड दे रहे, जैसा अभी अलार्म लगाए ना, उसी तरीके से अपने बॉडी के सेल को अलार्म लगा रहे प्योर का। तो जैसा प्योर का प्रोग्राम कंटिन्यू यूज करने से अपने को बॉडी सेल्स में जो भी टॉक्सिन्स है ना, वो पूरे अनलोड हो जाएंगे। तो ऐसा जैसे हम नहाते रोज, इसी तरीके से अपने बॉडी सेल्स को प्यूरिफाई करते करते अपने बॉडी के जो कचरा है ना, वो क्लीन करेंगे। सो ये फर्स्ट हीली गोल्ड में फर्स्ट एडिशन में ये फर्स्ट प्रोग्राम है प्योर। उसके बाद है केयर। केयर में क्या होता है, अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता, सेल को केयर करने से इम्यूनिटी बढ़ता। उसके बाद है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होता है फिजिकल बैलेंसिंग, और बीइंग है इमोशनल बीइंग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए। एनर्जी है ये बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, सेल को एनर्जाइज करने के लिए। फिर सेल रिलैक्स है और सेल रिलीज। ये सेल रिलीज से अपने बॉडी में पेन रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से हमारे पास ये, इसको बोलते हैं हीलिंग गोल्ड फ्रीक्वेंसीज। इसमें प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स एंड रिलीज। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज, चंदना जी। Yeah. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट पेज प्लीज। या नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से पेन एंड साइकिल। इसमें क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन है, टूथ जॉ पेन है, जॉइंट पेन है, माइग्रेन है, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो इसमें आज तो आपको मालूम है हर घर में आप देखिए पेन कॉमन हो गया। ऐसा भी जाना जाता है कि दुनिया पूरे में हर घर में पेन है। तो पेन का छुटकारा क्या है? पेन किलर खाना, लाइफ टाइम पेन को बेयर करना। अगर बर्दाश्त के ऊपर हो गया तो पेन को क्या करना, निकाल के बॉडी में से फेंकना। मीन्स व्हाट? सर्जरी। यस, बट यहाँ एक फ्रीक्वेंसी है, इससे क्रॉनिक पेन, अपने बॉडी का जो क्रॉनिक पेन्स है ना, उन लोगों के एड्रेस करने के लिए हम जो एक्सपीरियंस कर रहे पेन का, उसमें ये सब ब्रेन फ्रीक्वेंसी से। इसमें मैं वंडरफुल फ्रीक्वेंसी आपको एक्सप्लेन करूंगा, माइग्रेन। आपको तो मालूम माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, जिंदगी भर माइग्रेन के लिए पेन किलर्स लेते रहते हैं। तो ये वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है माइग्रेन का। ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू यूज करने से माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं और दवा को भी रोक सकते हैं। तो इसमें माइग्रेन भी है और क्रॉनिक बैक पेन और नी पेन भी है। उसके साथ इंसोमिया, ये नींद के लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। आज नींद इतना कॉस्टली हो गया दुनिया में कि नींद से क्या हो रहा है, कई लोग नींद के पिल्स खाते हैं और नींद नहीं लेते हुए कई लोग सफर हो रहे हैं। उनके लिए हमारे पास वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है, वही नींद का फ्रीक्वेंसी। सो नाउ अपने पास ये नींद का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। ये कंटिन्यू यूज करने से अपने को नींद में वंडरफुल बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट बैक प्लीज। तो यहाँ हमारे पास मेरिडियन प्रोग्राम्स है। चाइनीज मेरिडियंस आप सुने होंगे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से चाइनीज थेरेपी में मेरिडियन चैनल बोलते हैं। तो मेरिडियन चैनल से क्या होता, एक एक मेरिडियन चैनल, जैसा लंग मेरिडियन हो गया, किडनी मेरिडियन हो गया, इस तरीके से जो मेरिडियंस को ऑपरेट करके हम कई तरह के हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सकते हैं। उसमें यहाँ है एलर्जी मेरिडियन, ये स्पेशली डिजाइन फॉर एलर्जीज। आपको कई तरह के एलर्जीज रहते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं धूप में जाने से मेरे को एलर्जी होता है, थोड़े लोगों को ऑयल का एलर्जी है, थोड़े लोगों को खट्टा खाने से एलर्जी होता है। इस तरीके से कई लोग मैं देखते रहता हूँ कि मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो एलर्जी का मेडिसिन जिंदगी भर लेते रहते। तो अभी डिजिटल मेडिसिन आ गया है, तो यही एलर्जी मेडिसिन फ्रीक्वेंसी है। ये यूज करके आप विदाउट साइड इफेक्ट आप एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड टिश्यूज है ये मेरिडियन में। नेक्स्ट ब्लॉडर मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है ना,
जैसे कि पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, फिस्टुला हो गया, इन चीजों में जो लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड, माने जो मोशन का जो पाइप है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने पास वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रीक्वेंसी यूज होता जैसे कि अमीबियासिस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल मूवमेंट, माने खाना खाए कि थोड़े लोगों को मोशन होने का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों के लिए ये वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। फैटी डीजनरेशन फ्रीक्वेंसी है। ये फैट माने बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता, अच्छा प्रोटीन और बुरा प्रोटीन, उसको बैलेंस करने वाला फैटीन डीजनरेशन वंडरफुल प्रोग्राम है। इवन ये वेट लॉस में भी यूज होता। नेक्स्ट गाल ब्लैडर फ्रीक्वेंसी है। जो गाल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज है और बॉडी में जो गैस बनते रहता, माने ये तले हुए चीज खाने से अपने बॉडी में गैस बनते रहता, वो गाल ब्लैडर चैनल में डिस्टर्बेंस होने से होता है, तो उन लोगों के लिए वंडरफुल प्रोग्राम। नेक्स्ट जॉइंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे घुटने में दर्द हो गया, देन शोल्डर दर्द हो गया, एल्बो, टेनिस एल्बो हो गया, इन चीजों के लिए अपने पास जॉइंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अभी तक आप दो देखिए मेरिडियन चैनल से, इसके साथ जुड़ा है ये आप सामने देख रहे हो बायोएनेटिक बैलेंस 1 प्रोग्राम से। इसमें है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता। और कोल्ड एंड चिल प्रोग्राम है। इससे क्या होता है आपको तो मालूम है, जुकाम आए तो दवा लिए तो भी 5 दिन, दवा नहीं लिए तो भी 5 दिन बोलते हैं पुराना जमाने। तो आप चेक कर सकते, आपको जुकाम आए तो ये फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं और जुकाम से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट इधर है एलर्जीज, आइज, हार्मोन्स, इंटेस्टाइन, नर्व सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेशन और मेनोपॉज। यहाँ मेनोपॉज के लिए मैं एक बार आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है हमारे सिस्टम में। जैसे 40 साल के बाद आप देख रहे तो लेडीज मेनोपॉज में एंटर हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम बोलते हैं मेनोपॉज में 3 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेज हो गया प्री मेनोपॉज, सेकेंड फेज हो गया मेनोपॉज फेज, एंड लास्ट फेज हो गया पोस्ट मेनोपॉज। इन दिनों में क्या होता, उनके अंदर लेडीज में बॉडी पेन्स होना, मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और एकदम गर्मी लगना, एकदम ठंडी लगना, और अचानक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, अचानक शुगर आना, अचानक बीपी आना, अचानक थायराइड आना। इस तरीके से कौन से कई हार्मोन रहते वुमेन में, जैसे कि हो गया लेडीज में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, पॉलिसिस्टिक हार्मोन, LH, FSH, थायराइड हार्मोन। इस तरीके से 7 मेजर हार्मोन रहते, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस होने में मेनोपॉज फेज में, तो उनमें ये सब साइड इफेक्ट होते। तो मेनोपॉज से छुटकारा पाने के लिए और उनके लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए, विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट एनी मेडिसिन, वंडरफुल फ्रीक्वेंसी ये मेनोपॉज। कोई भी आपके घर में ये मेनोपॉज फेज में वुमेन, मैंने लेडीज, आपके घर की लेडीज सफर हो रहे, एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस करके देखिए, वंडरफुल रिजल्ट देगा। हार्मोन में अपना फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम मेंशुरल लोकल बुल के फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं बच्चों में, गर्ल्स में जो PCOD होता ना, उसके लिए ये वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। और उसी के साथ जैसे वाइट डिस्चार्ज हो गया, और बच्चों में पीरियड्स में बैक पेन होना, स्टमक पेन होना, और लेग्स में पेन होना, और उनमें कई लोगों मैं देखते रहता हूँ कई तरह के पेन किलर्स खाते रहते, मगर हम जानते हैं पीरियड्स टाइम में कोई पेन किलर नहीं खाना है, मगर मजबूरी से खाते रहते। उन लोगों के लिए छुटकारा है एंड वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है ये मेंशुरल लोकल। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोग्राम से, यहाँ एसिडिटी के लिए, टाइम पे खाने से एसिडिटी नहीं होता, मगर टाइम में खाने के लिए टाइम नहीं है, करेक्ट? ये तो कॉमन लाइफस्टाइल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। इससे क्या होता है, एसिडिटी रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज में ये अच्छा काम कर रहा है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ओल्ड एज लेडी मेरे पास आए, उनको भूख नहीं लग रहा था। वो बोलती थी मेरे को उनका सुन के बहुत दुख लगा, जिस दिन पैसे नहीं थे उस दिन खाना नहीं था साहब, आज खाना आ गया, आज पैसे आ गए, खाना आ गया, मगर भूख मिट गया। ये बोलिए, मेरे को आंखों में पानी आया, क्योंकि वो मेरे माँ के एज की है। तो अभी देखिए बहुत लोग ये प्रॉब्लम में रहते ओल्ड एज में, तो उनके लिए मैं अद्भुत फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, मिरेकल,
उनमें खाना पचने की शक्ति बढ़ जाती है और खाने में टेस्ट भी आता है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बैक्टीरिया फ्रीक्वेंसी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। टॉन्सिल्स है बच्चों के लिए, लिवर फंक्शनिंग है और इंटॉलरेंस प्रोग्राम है फ्रीक्वेंसी में। टॉक्सिन्स, हेड, ये हेड प्रोग्राम है ना, हेड टेंशन के लिए। आज टेंशन कॉमन हो गया है, टेंशन से क्या होता है आपको तो मालूम है, हेडेक होता है। तो हेडेक के लिए हमारे पास एक्सीलेंट प्रोग्राम है हेड। नेक्स्ट प्रोस्टेट प्रोग्राम। अभी तक मैं जैसे आपको मेनोपास के लिए बताया था लेडीज में, इसी तरीके से जेंट्स में भी हार्मोन प्रॉब्लम आता, उसी का नाम क्या है, प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम से जेंट्स में क्या होता है, यूरिन पहले कंट्रोल नहीं रहना और यूरिन बार बार जाना और यूरिन जाके आने के बाद यूरिन थोड़ा बच जाना, ये सब प्रोस्टेट का इश्यूज है। तो उससे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद प्रोस्टेट का फंक्शनिंग माने प्रोस्टेट ग्लैंड उसका फंक्शनिंग कम हो जाना और उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आना और वो बढ़ जाना। बढ़ने से क्या हुआ, ट्यूमर फॉर्म। जब ट्यूमर फॉर्म हो गया तो प्रोस्टेट का सर्जरी होता है। सिस्टिक प्रोस्टेट होता है, उसको भी सर्जरी होता है। फिर बाद में फिर ग्रोथ आता, फिर उसको सर्जरी करना पड़ता, फिर यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, उससे यूरिन ट्यूब कैथेटर यूज करना, ये सब साइड इफेक्ट होते हैं। जैसा आपको मालूम है थायराइड के लिए हम थायरोनाम एंजाइम लेते हैं, इसी तरीके से प्रोस्टेट के लिए एक एंजाइम होता है टेस्टोस्टेरोन। लेडीज में ईस्ट्रोजन मेजर हार्मोन है और जेंट्स में प्रोस्टेट के लिए टेस्टोस्टेरोन मेजर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस होने से अपने बॉडी में जेंट्स में भी कई तरह के हार्मोन चेंजेस आते हैं। उसमें आर्थराइटिस आना, कोलेस्ट्रॉल आना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेम मूड स्विंग, ये सब जेंट्स में भी होते हैं, एकदम गुस्से वाला हो जाते हैं। तो सबका रीजन क्या है, प्रोस्टेट। तो गुस्सा आ रहा क्यों बोले तो उनको भी समझ में आता है, इसके पहले वो शांत रहते थे, अभी उनके अंदर ही एकदम चिड़चिड़ापना आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ मेन हार्मोन ऑफ प्रोस्टेट। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हुए कंप्लीट हेल्थ को मेंटेन करने का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास प्रोस्टेट। नेक्स्ट वी हैव लंग फंक्शन। ये लंग फंक्शन फ्रीक्वेंसी है आस्थमा वालों के लिए। जैसे आस्थमा वाले, ब्रोंकिटिस वाले क्या होता, सीजन चेंज तो कोल्ड होना, कफ बनना, फ्लम बनना और दम चढ़ना, पफ्स लेते रहते, इनहेलर्स लेते रहते बच्चों में, उनको लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी हमारे पास लंग फंक्शनिंग। मैं तो एक चैलेंजली बता सकता हूँ कि आप लोग कोई भी आपके घर मालूम है ऐसे लोगों को आस्थमा से नहीं कोल्ड इफेक्ट से सफर हो रहे हैं, उनको एक हफ्ते के लिए लंग फंक्शनिंग फ्रीक्वेंसी दीजिए, उन लोग खुद बताएंगे इसका क्या रिजल्ट है, उतना इफेक्टिवली ये काम कर रहा है। नेक्स्ट थायराइड फ्रीक्वेंसी है। थायराइड मेडिसिन यूज करिए, बंद नहीं करना एकदम, क्योंकि आपको आदत गिरा है। उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी यूज करिए। माने क्या कर रहे हैं, इसके पहले क्या कर रहे हैं, थायराइड काम नहीं कर रहा, आप बाहर से थायराइड का मेडिसिन ले रहे हो, ये सब आपको मालूम है। मगर अभी क्या कर रहे हैं, थायराइड काम नहीं कर रहा, बाहर से थायराइड मेडिसिन लेते हुए थायराइड काम कराने के लिए फ्रीक्वेंसी से उसको क्या कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर रवि साहब बताए कि फ्रीक्वेंसी से थायराइड सेल्स को एक्टिवेट कर। जब आपका थायराइड सेल एक्टिवेट हो गया थोड़े दिन में यूज करने के बाद, आप जाके टेस्ट करिए, अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आ रहा है डॉक्टर साहब को दिखाइए, ऑटोमेटिक आपका डोज कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट एंड बोन प्रोग्राम है, जॉइंट पेन्स के लिए। आजकल आर्थराइटिस कॉमन हो गया, नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, हील पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये सब आप कॉमन सुनते रहते हैं। इन सब के लिए हमारे पास वंडरफुल फ्रीक्वेंसी, कहीं नहीं जाना है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ फिजियोथेरेपी नहीं करना है, घर में ही बैठना है, एक ही डिवाइस से घर पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से आप जॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है सयाटिका। इस तरीके से हमारे पास कई तरीके के फ्रीक्वेंसी है, उसमें अभी लास्ट फ्रीक्वेंसी में बताने वाला हूँ वो चक्रास। नेक्स्ट इधर सामने देख रहे ब्यूटी एंड स्किन के लिए भी फ्रीक्वेंसीज है। नेक्स्ट ये वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेंटल बैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी। माने जैसे योगा में बोलते हैं बॉडी माइंड सोल, इसी तरीके से अभी तक जो आप सुन रहे हैं फिजिकल बॉडी रिलेटेड, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये मेंटल रिलेटेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज है। इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इनर स्ट्रेंथ। ये इनर स्ट्रेंथ जो फ्रीक्वेंसी है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। आज दुनिया पूरे में
सक्सेसफुल पीपल कौन है बोल तो एक बार आप देखिए, ध्यान से देखे तो जो पढ़ा वो भी सक्सेसफुल है, जो ना ही पढ़ा वो भी सक्सेसफुल है। मैं उन दोनों में सक्सेस कौन लेके आया एक बार देखे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, आप नॉलेज को आप एग्जिबिट भी करेंगे, आपका पढ़ाई भी नहीं है मगर आप टॉप भी बन सकते हैं। इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस विल पावर को बढ़ाने का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट इमोशनल वेलबींग है। अपने बॉडी में, अपने माइंड में जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जैसे अपने कुछ लड़ाई हो गया, नहीं तो कुछ कोई गुस्सा कर दिया, ये फीलिंग्स पूरे अपना रह जाते हैं, अपने बॉडी के सेल में टेम्पररी फाइल्स रह जाते हैं। उनको डिलीट करके अपने सेल को हैप्पी रखने के लिए इमोशनल ब्लॉकेजेस है। नेक्स्ट फील गुड है। अपने को जब रिजेक्शंस होता है लाइफ में तो बहुत सारे नेगेटिविटी हो जाता है, उसमें से निकलने के लिए अपने पास फील गुड है। नेक्स्ट कंटेनमेंट प्रोग्राम है। ये कंटेनमेंट प्रोग्राम दोनों भी है ओसीडीज के लिए, माने ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर बोलते हैं। माने जो आदत है, जैसे चाय नहीं पीते हुए नहीं रह सकते, अल्कोहल नहीं पीते हुए नहीं रह सकते, स्मोक करते हुए नहीं रह सकते, ये एडिक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकली ये फ्रीक्वेंसीज यूज करा, बच्चों में लैपटॉप के लिए यूज करा, बच्चों में टीवी के लिए यूज करा है। टीवी, लैपटॉप और आईपॉड गेमिंग करते हुए नहीं रह सकते बच्चे, ऐसे बच्चों को भी मैं ये कंटेनमेंट प्रोग्राम दिया, वंडरफुल रिजल्ट है। भाई बच्चे ये छोड़ देके अपने काम में आप लग गए। नेक्स्ट इनर यूनिटी प्रोग्राम है, वेलबीइंग प्रोग्राम है और मेंटल बैलेंसिंग प्रोग्राम है। ये मेंटल बैलेंस प्रोग्राम के बारे में एक बार बताता हूँ। हम जो भी लोग आए दुनिया में, मेंटली बैलेंस रहने से फिजिकल इलनेस जैसा मिलता है, उसी तरीके से मेंटल इलनेस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम रेगुलरली डेली यूज करने का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है मेंटल बैलेंस। ये मेंटल बैलेंस रहने से अपना परफॉर्मेंस, आउटलुक, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सोशली, उसमें एक वंडरफुल अचीवमेंट हम ले सकते हैं। ये पूरे जो भी है मेंटल बैलेंस रिलेटेड प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास स्लीप प्रोग्राम है। आज स्लीप के लिए मैं इसके पहले बताया, तो इधर एडिशनली स्लीप प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जॉब एंड स्लीप प्रोग्राम है हमारे पास। जो प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं उनके लिए ये वंडरफुल प्रोग्राम है। जैसे जॉब कर रहे हो, जैसे ये प्रोफेशनल कुछ डॉक्टरी हो गया, एडवोकेट हो गए, इन लोगों के लिए, पॉलिटिशियन हो गए, इन लोगों के लिए वंडरफुल प्रोग्राम्स है। एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन प्रोग्राम है मेंटल क्लैरिटी के लिए, माइंड क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट पॉजिटिव थॉट है, बैलेंस नर्वस सिस्टम, फैटिग, एग्जॉस्ट, एक्सट्रीम स्ट्रेस। ये एक प्रोग्राम के लिए मैं एक बार हाईलाइट करने वाला हूँ। हमारे पास मास्टर प्रोग्राम है ये जॉब एंड स्लीप में, एक्सट्रीम स्ट्रेस। मेरे पास एक बंदा आया, उनका शुगर 300 के ऊपर चल रहा, इंसुलिन लेने के बाद, दवा लेने के बाद, फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। खाना भी कंट्रोल करे, एक्सरसाइज भी कर रहे, मगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हम लोग यूज करें उनके ऊपर, इट इज प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज, बिकॉज स्ट्रेस से उनको शुगर बढ़ के आ रहा। इसलिए हम लोग क्या करें, उनको स्ट्रेस का प्रोग्राम लगाए। थोड़े दिन स्ट्रेस का प्रोग्राम लगाए, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आएगा। तो आपको समझ में आएगा होगा स्ट्रेस निकालना सेलुलर लेवल में जाके फ्रीक्वेंसी से अपने बॉडी में से कंप्लीट स्ट्रेस को निकाल के लाइफस्टाइल डिजीज से अपने को बाहर आने के लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। नॉट ओनली शुगर, इवन बीपी के लिए भी ये वंडरफुल। जो लोग दवा लेते हुए बीपी नहीं कंट्रोल होता, उनके लिए भी ये स्ट्रेस प्रोग्राम अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट जॉब एंड स्लीप हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है वेट बैलेंसिंग, फिटनेस प्रोग्राम है हमारे पास। आज वेट बैलेंस के लिए सब लोग क्या करते, डाइट करते रहते, खाना बंद कर देते। मैं पूछ रहा हूँ, खाना बंद करने से वेट थोड़ी कम होता है। अपने बॉडी में जो फैट है, प्रोटीन्स बोलते हैं ना, तो दो तरीके से होते, गुड प्रोटीन और बैड प्रोटीन। ये वेट प्रोग्राम रन करने से अपना बॉडी में जो गुड प्रोटीन है बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो बैड प्रोटीन है वो बॉडी क्या कर रहा, एक्यूमुलेट कर रहा। तो अपने बॉडी में से जो बैड प्रोटीन है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास वंडरफुल प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है, वेट। तो इस तरीके से वेट प्रोग्राम है, मसल प्रोग्राम है, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन, ये सब जैसे हम जिम में यूज करते हैं वो सब फिटनेस प्रोग्राम यहाँ आपके पास है। नेक्स्ट ये भी एक वंडरफुल फ्रीक्वेंसी आप लोग पक्का जानना है, इसका नाम क्या है, लर्निंग। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। अगर आपको मास्टरी करना है स्टडीज में, ये वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है आपका स्टडी सपोर्ट के लिए।
जैसे आपको तो मालूम है 60 मार्क के जो आते हैं उनको 100 मार्क्स करना इजी है, मगर जो फेल होते हैं उनको 100 करना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई जो होता है ना, आजकल मदर्स के लिए बहुत बड़ा टफ जॉब क्या हो गया है, बच्चे नहीं पढ़ रहे। जो बच्चे आपको नहीं पढ़ रहे उनके लिए वंडरफुल प्रोग्राम है लर्निंग प्रोग्राम। जो नहीं पढ़ रहे उनको जस्ट लर्निंग प्रोग्राम रन करिए, आपको मालूम हो गया वो अपने आप लर्न करना शुरू कर लिया। इस तरीके से लर्निंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट मेमोरी प्रोग्राम है, जो पढ़े वो भूल रहे। और नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्राम तो मैं बोलता हूँ मिरेकल प्रोग्राम है। ये हाइपर एक्टिव जो बच्चे रहते और जो बच्चे पढ़ना शुरू करते और उनका पढ़ाई फोकस नहीं रहता और डिस्टर्ब होते रहते, उनके लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है वही कॉन्सेंट्रेशन फ्रीक्वेंसी। एक बार ट्राई करिए आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट एग्जाम स्ट्रेस प्रोग्राम है, जो एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है, पढ़ लिए, मेमोरी भी है, कॉन्सेप्ट सब कुछ है, मगर जब परफॉर्मेंस करते हैं उसमें फेल होते रहते हैं। उनके लिए हमारे पास वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है वही एग्जाम स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ये हो गया लर्निंग फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद लास्ट फ्रीक्वेंसी है वही चक्रास। एक बार चक्रास देखेंगे। तो अभी तक आप जान लिए फिजिकल बॉडी के बारे में, जान लिए मेंटल बॉडी के बारे में जान लिए, और फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया। अभी जा रहे हैं हम स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। आप सामने जा रहे हैं चंदना जी, पीछे जाइए। यस यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास चक्रास, वो स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। नेक्स्ट, यस। सो नेक्स्ट, या आप सामने देख रहे, आप देखिए इधर 7 चक्रास आपको दिख रहे हैं। अपने बॉडी में टोटल 7 चक्रास रहते। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आपको तो मालूम है सूक्ष्म स्थूल काय 3 टाइप के बॉडीज रहते हैं अपने अंदर। उसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ बोले। तो अभी तक आप जो भी प्रोग्राम, प्रीवियस प्रोग्राम देखे वो सब फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के लिए देखे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअलिटी में क्या आता, वो तो जो लोग स्पिरिचुअल से जुड़े उनको उसका बेनिफिट और उनका अचीवमेंट मालूम होता है। मगर आपको रियली स्पिरिचुअल में क्या इफेक्ट्स होते हैं आपको जानना है, आपको टेस्ट करना है, आपको अचीव करना है। आपको कुछ टाइम नहीं रखते हुए, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए बहुत लोग नहीं करते रहे। तो ये जस्ट फ्रीक्वेंसी से आपका चक्रास को बैलेंस करते हुए आप कंप्लीट स्पिरिचुअल हेल्थ ले सकते हैं। उसमें हमारे पास है रूट चक्रा। ये क्या करेगा, रूट लेवल में जाके अपना रूट्स को स्ट्रांग करेगा, माने जेनेटिकल इश्यूज को भी कंट्रोल करेगा। और रूट्स को स्ट्रांग करने से अपना हेल्थ कंप्लीट फिजिकल हेल्थ में अपने काम आए। नेक्स्ट सैक्रल चक्रा है। ये सैक्रल चक्र स्टिमुलेट करने से अपना क्रिएटिविटी, लाइफ का क्रिएटिविटी बढ़ता है। एंड नेक्स्ट, एक सैक्रल चक्र से इवन बोलते हैं कि चक्र हीलिंग वाले बोलते हैं कि ह्यूमन रिलेशन, फैमिली रिलेशंस भी बना रख सकते हैं। नेक्स्ट सोलर चक्र है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हार्ट चक्र है, ये हार्ट चक्र अपने को क्या बोलते हैं, हार्ट चक्र, हार्ट ओपन होने से लव एंड अफेक्शंस के लिए। थ्रोट चक्र है कम्युनिकेशंस के लिए। थर्ड है चक्र है इल्यूजन्स, माने साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इल्यूजन्स के लिए। क्रॉन चक्र है ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट के लिए। इस तरीके से 7 चक्रास को बैलेंस करते हुए अपन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल में अपने बॉडी को अपन बैलेंस कर सकते। ये सब अभी तक जो बताए ये पूरे मिला के आपको थोड़े फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बताया। तो ये 50% फ्रीक्वेंसीज को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा, और कई सारे फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, डिजिटल न्यूट्रिशन वाले फ्रीक्वेंसीज है। वो सब फ्रीक्वेंसीज आप जो ये सेमिनार को आपको इन्वाइट करें उनको आप मिलिए, एक बार पूरे ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक बार कंप्लीट देखिए। हम बताए आप लीजिए, आप यूज करें, ये मेरा मतलब नहीं है। साइंस क्या है, क्या क्या फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो गए अभी आपको पता चला। अभी आप अपने को क्या करना है, जस्ट आपको जो इनविटेशन दिए सेमिनार के लिए उनके पास डिवाइस टेक्नोलॉजी है, एक बार वो डिवाइस को पूरा आप ध्यान से देखिए। बाद में अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज है, एक बार यूज करिए। अगर आपको समझ में आया रियली विदाउट मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट रहते हुए आपका बीमारी से आपको छुटकारा लेना है, यस ये वंडरफुल टेक्नोलॉजी, एक बार ट्राई करिए। यही नहीं, और एक बात मैं बताने वाला हूँ, ये प्योरली मेडिकल डिवाइस नहीं है, एज डॉक्टर रवि सर एक्सप्लेन करे। जर्मनी में भी इसका जो अवार्ड मिला है, ये वेलनेस डिवाइस है। क्यों वेलनेस डिवाइस है, मतलब आप
ये वेलनेस डिवाइस आप कैसा यूज कर सकते माने विदाउट साइड इफेक्ट विदाउट सफरिंग आप यूज कर सकते। तो लास्ट क्लोजिंग में मैं एक बार डॉक्टर रवि सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो आप फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको मालूम हुआ, तो इस पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एक बार डॉक्टर रवि से सुनिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, वंडरफुल फ्रीक्वेंसीज के बारे में अभी डॉक्टर रघु आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी फाइनली हम जानेंगे इसमें क्या क्या वर्जन्स के क्या क्या प्राइजेस है, और एक वंडरफुल ऑफर भी चल रहा है। चंद्रा जी एक बार हम प्राइजेस दिखाइए और ऑफर भी दिखाइए। सो Okay. और एक या प्लीज, और आपका एक 5 मिनट लेंगे हम। इसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट आर द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। अभी ये जो हम जान चुके हैं इसका प्राइस क्या होता है और क्या ऑफर में अभी है, हम जानेंगे। फर्स्ट मशीन डॉक्टर रवि जी एक्सप्लेन करिए एसेंशियल। या सो फर्स्ट डिवाइस है उनका, इसका नाम है एसेंशियल बोलते हैं। इसमें 6 वेरिएंट्स है। डिवाइस सेम रहेगा मगर प्रोग्राम्स बढ़ते जाएंगे। प्रोग्राम से प्रोग्राम पैसे भी, उसका कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। जैसा कॉमन मैन मैंने जैसा मैं बोला ना, ये जिसको किसी को जिसका बीमारी के हिसाब से वो हिसाब से पैकेज ले सकते हैं। फर्स्ट जो डिवाइस है उसका नाम एसेंशियल बोलते हैं, इली एसेंशियल। इसका कॉस्ट है 22,405। इसमें एक 4 प्रोग्राम मिलेंगे। नेक्स्ट कंप्लीट स्लाइड है ना, वो दिखा दीजिए 6 वाला। नेक्स्ट 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 पूरा प्रोग्राम्स का शीट दिखा दीजिए, जो प्राइस लिस्ट है ना, प्राइस लिस्ट दिखा दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट या नेक्स्ट 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 या बस। सो पहला वर्जन है, उसका नाम एसेंशियल बोलते हैं। उसका कॉस्ट 22,450 रुपीज है, आपके सामने जो दिख रहा है। सेकंड वर्जन है हीली गोल्ड बोलते हैं, उसका कॉस्ट 41,352 है। तीसरा वर्जन है होलिस्टिक बोलते हैं, इसका कॉस्ट है 82,800 रुपीज। फ्रेंड्स, नवंबर मंथ का एक ऑफर चल रहा है, इस मंथ का ऑफर, उसमें 45% डिस्काउंट में मिल रहा है 80,000 वाला। सो 82,000 वाला 45% डिस्काउंट होने के बाद इसका कॉस्ट होगा 45,540 रुपीज। सो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वर्जन रेजोनेंस। सो इसमें इसका कॉस्ट है 1,23,458 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 45%। इस पे भी 45% डिस्काउंट है, 67,902 पे आएगा। उसके बाद का वर्जन है रेजोनेंस प्लस। इसका कॉस्ट होगा आपको 2,05,359 रुपीज आफ्टर 45% डिस्काउंट, 1,13,278 रुपीज। लास्ट वर्जन है प्रोफेशनल वर्जन बोलते हैं, इसका कॉस्ट है 3,29,119 रुपीज आफ्टर 45% डिस्काउंट, ये होगा 1,81,016 रुपीज। इस तरीके से 6 पैकेजेस है। डिवाइस सेम है, कोई भी पैकेज करो डिवाइस में कोई फर्क नहीं आएगा, डिवाइस आपको सेम मिलेगा, मगर जैसा पैसे है वैसा आपका पैकेजेस है। कोई भी पैकेज आप खरीद सकते हैं। जिस किसी को पूरे प्रोग्राम चाहिए, 229 प्रोग्राम चाहिए, हर कॉर्नर में बॉडी को हर सिस्टम में सपोर्ट करना है, तो हायर वर्जन ले सकते हैं। उसका कॉस्ट 3 लाख, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, डिस्काउंट के बाद 1,81,000। सो फ्रेंड्स, ये डिवाइस एक डिवाइस खरीद के एंटायर फैमिली यूज कर सकता। ऐसा नहीं कि ये एक डिवाइस एक ही आदमी यूज कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिवाइस खरीद के एक के बाद एक घर के हर फैमिली में यूज कर सकते, फायदा बात। सेकंड, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार खरीद लिए बार बार कुछ खरीदना है, बार बार कुछ भी नहीं खरीदना है।
जिंदगी में एक बार कर दिया ये पूरे जो फ्रीक्वेंसी है, और लाइफ में कोई भी बीमारी हो, कैसा भी आपके सफरिंग्स हो, उसको आप इस टेक्नोलॉजी से बैलेंस कर सकते हैं। इसी क्रम में ये टेक्नोलॉजी वो लाइफ टाइम यूज करते हुए अपने हर चीज में सपोर्ट रहता है। जैसा कि बच्चों का स्टडीज पे यूज होता है। अगर फॉर एग्जांपल अपने बच्चे स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, गेमिंग, जैसा डॉक्टर रघु बताए गेमिंग में इंटरेस्ट है, नहीं तो एडिक्शंस हो गए, तो वैसा बच्चों को छुड़ा सकते हैं, स्टडीज में इंटरेस्ट ला सकते हैं। लर्निंग प्रोग्राम है, उनको स्टडीज समझाने के लिए, याद रखने के लिए मेमोरी प्रोग्राम है, एग्जाम में जाके लिखने के लिए एग्जाम प्रोग्राम है, स्ट्रेस हटाने के लिए स्ट्रेस प्रोग्राम है। इसी तरीके से बच्चों का ही नहीं, बड़ों का प्रोग्राम, जैसा कि जो जॉब बिजनेस में जो स्ट्रेस हो, एक्सट्रीम स्ट्रेस हो, टेंशन हो, प्रेशर, उसके प्रोग्राम्स है। लेडीज के लिए स्पेशली नेक पेन, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस हो, मेनोपॉज हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, लड़कियों में स्पेशली आजकल पीसीओडी प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर होना, ओवर ब्लीडिंग होना, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प होता है। उसी तरीके से जो अपने घर में ओल्ड एज पीपल है, जैसा कि जेंट्स में अपने लेडीज और जेंट्स जो ओल्ड एज रहते हैं बुजुर्ग, उनमें मेन कंप्लेंट क्या होता है? रात में नींद नहीं लगने की बीमारी। नींद के कमी से रोज टैबलेट यूज करके, टैबलेट आदत होके थोड़े दिनों के बाद टैबलेट लेने से भी नींद नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए नींद का प्रोग्राम है। उसी तरीके से बुजुर्ग में यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता, जैसा कि उनको यूरिन आए तो रोक नहीं पाते, जल्दी जाना ऐसा लगता है, उनको यूरिन कंट्रोल करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर प्रोग्राम है। इसी तरीके से मोशन फ्री नहीं था, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, सुबह में तकलीफ उठाते, मोशन के लिए जाके जो प्रेशर लगा के अंदर ही टॉयलेट में हार्ट अटैक आके हार्ट अरेस्ट होकर मर गए, सो एज्ड पर्सन भी हम सुन चुके हैं। सो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम उतना टफ प्रॉब्लम है। तो अगर मोशन फ्री नहीं रहे तो भूख नहीं लगता, गैस बन जाता, तो मोशन फ्री होने का प्रोग्राम से, माने उनका हेपिटेट बनाने के प्रोग्राम से, पेन के लिए प्रोग्राम से, इली ये ऐसा एक चीज है कि एक है, हर दिन अपने घर में बैठ के अपने बॉडी को हर सिस्टम में जहां हम इम्बैलेंस हो रहे, जहां हम वीक हो रहे, जहां हम सफर हो रहे, हर चीज में हीली अपने को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो इस चीज को हम घर में रख के घर भर लाइफ टाइम जनरेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि रिपेयर हुआ। अगर हार्डवेयर का 2 साल का गारंटी है, 2 साल के अंदर अंदर आपका हार्डवेयर कुछ हो गया तो कंपनी खुद नया हार्डवेयर रिप्लेसमेंट करके देगा। 2 साल के बाद अगर डिवाइस में कुछ रिपेयर आए तो कंपनी से आप खुद वो हार्डवेयर खरीद सकते हैं 20,000 देके, मगर पैकेज का कोई भी पैसे कंपनी नहीं लेता है। एक बार आप पैकेज ले लिए, लाइफ टाइम वो जो प्रोग्राम्स है आपके ही है। तो हार्डवेयर आप खाली रिप्लेस कर सकते हैं अगर खराब हो गए तो, 2 साल तक तो वो भी अवकाश नहीं है। तो इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है हर घर में फ्यूचर में आने वाला है, घर घर में आने वाला है। फाइनली क्लोजिंग में मैं एक अच्छा सा टेस्टिमोनी जो रिसेंटली एक्सपीरियंस करे, सो एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चंदना जी एक बार वो स्लाइड हमारे को शेयर करिए। मेरे पास एक बंदा आया था, राजेश जी बोल के, वो धारवाड़, कर्नाटक धारवाड़ से। तो उनको क्या है, ये अल्कोहल एडिक्शन हो गया था। एडिक्शन होके अल्कोहल पी पी के उनका लिवर फेल हो गया था, लिवर सिरोसिस हो गया था। यहाँ एक अच्छा सा हैदराबाद में टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं। हर डॉक्टर बोल दिया कि ये केस हेल्पलेस केस है, इसका कोई इलाज नहीं है, लिवर टोटली फेल हो चुका है। तो मेरे पास जब आया था उसका पेट ऐसा पूरा फुला हुआ था, पानी भर गया था, असाइटिस बोलते हैं, पानी भर गया होता। उसका जैंडिस का परसेंटेज आप देखिए, पहले का रिपोर्ट दिखाइए, ये 14 नवंबर का है, उसके पहले का रिपोर्ट दिखाइए, फर्स्ट रिपोर्ट। मैं आपको ये रिपोर्ट क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ बोल तो, ये आदमी को 1 महीना हीली कंटिन्यू यूज करने के बाद फर्स्ट रिपोर्ट क्या था, सेकंड रिपोर्ट क्या है, थर्ड रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट आपके सामने मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो उसका जैंडिस लेवल्स कितने थे पहले में मेरे पास आए, जब सेकंड 15 दिन के बाद क्या जैंडिस लेवल थे, और लास्ट को क्या हुआ, सो ये दिखाना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट मेरे पास आया था 30 अक्टूबर को, जब उनका रीडिंग देखिए एक बार दिखाई, ये नहीं, ये सेकंड वाला है, और एक रिपोर्ट है, इसके पहले का रिपोर्ट है, देखिए Okay, and just पहले का रिपोर्ट, या अभी मैं सेंड कर रहा हूँ चंदना जी को कि आपको शेयर कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स,
ये तो टेक्नोलॉजी है, आप डिवाइस लगा के तुरंत आप ये नहीं देखिए कि मेरे को क्या होने वाला है, मगर 1 महीना कोई भी बंदा कोई भी बीमारी के लिए यूज करके देखिए, जिंदगी में ये डिवाइस को आप नहीं छोड़ेंगे और आपके लाइफ में ऐसा एक इन्वेंशन होगा, ऐसा एक प्रोडक्ट आने वाला है कि लाइफ टाइम आपके बॉडी को, आपके फैमिली को बचा सके और कोई भी हेल्थ कंप्लेंट से आप अपने आप को खुद घर बैठे रिकवर कर सके। थोड़ा एनलार्ज करिए, उनका रिपोर्ट का देखिए, 28 था उनका जो डायरेक्ट बाइलिरुबिन, इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन दिख रहा है 28, 17.7, 10 और अल्कलाइन फास्फेट्स का उनका बढ़ गया 340 अल्कलाइन फास्फेट से 232। सो ये उसका फर्स्ट रिपोर्ट है, जब मेरे पास आया था सितंबर 29। फिर उसके बाद का रिपोर्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। क्या ये नेक्स्ट रिपोर्ट है अक्टूबर 30 का, 29 सितंबर के बाद 30 अक्टूबर हुआ। 30 अक्टूबर एग्जैक्टली 1 महीने के बाद उसका रिपोर्ट है 7.7 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन है, 7.7 बाइलिरुबिन है और 5.75 और अल्कलाइन फास्फेट भी देख सकते हैं आप 163 पे आ गया। सो इस तरीके से ऑटोमेटिक उनका जो लेवल्स है, जो उनका जो रिपोर्ट का लेवल्स आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद का रिपोर्ट है वो दिखाइए। सो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज ए प्रूवन साइंस। कोई भी बीमारी को अगर 1 महीना आप कंटिन्यू यूज करिए, आप खुद रिजल्ट पा सकते हैं। 3 महीने कंटिन्यू, अभी देखो 7.7 से 3.58 आ गया। सो धीरे धीरे कम होते गए, सब रिपोर्ट नॉर्मल में है। ये 14 नवंबर, सो 29 सितंबर से लेके 14 नवंबर कितना टाइम है आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। इतने टाइम में लिवर सिरोसिस को इतना सारा जो डैमेज हो गया, इतना सारा बढ़ के आया रिपोर्ट। इस चीज को कोई भी टेक्नोलॉजी में इतना कम कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क हो सकता फ्रेंड्स। ये एक वंडर में दिखाया। अगर टाइम चाहे तो कल सुबह तक मैं एक के बाद एक के बाद कई वंडर्स आपको दिखा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्लिनिकली हम 12 साल से इस टेक्नोलॉजी को प्रूव कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वंडर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो आप भी जान लीजिए, आप भी समझ लीजिए और आपके फैमिली में इस टेक्नोलॉजी को लाइए। और जो भी ये सेशन में आपको इनवाइट करे उनके पास बैठिए, जो भी आपका डिसीज है उसके ऊपर 5 से 10 दिन कंटिन्यू एक प्रोग्राम रन करके देखिए, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए, कोई दवा नहीं लेते हुए, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते हुए, कोई डैमेज नहीं रहते हुए, घर बैठे आपके हेल्थ को आपके हाथ में रखिए, आपका फैमिली को हेल्दी रखिए। इस भावना से इतना टाइम आप लोग हमारे स्पेंड करें, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मंडे के दिन मैं मुंबई विजिट कर रहा हूँ कोई काम पे, और मंडे इवनिंग मुंबई में मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी ये सेशन में है वो प्रैक्टिकली मेरे को मिलना चाहे और कोई और इसके लिए और एक्सप्लोर करना चाहे, हम लोग रेडी है। मंडे के दिन मुंबई में शाम 21st मंडे इवनिंग आई एम कमिंग टू मुंबई। सो फ्रेंड्स, every month we are conducting wonderful sessions in all the languages, Hindi, English, Telugu and Tamil and Kannada में। मैं आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप हेल्दी रहिए, आपके फैमिली को हेल्दी रखिए। अगर हो सके तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स में भी कई लोग तरह तरह के से बीमारी से सफर हो रहे। देखिए, ये कोई बंदा राजेश जी बोल के धारवाड़ से मेरे पास आया, धारवाड़ कर्नाटका कहाँ, हैदराबाद कहाँ। अगर ये बंदा मेरे पास नहीं आया तो, अगर उसको हीलिंग उसके जिंदगी में नहीं आया तो उसका जिंदगी क्या होता होगा, क्या आज उसका लाइफ होता होगा। तो हीली का कास्ट कितना है बोले तो मैं एक ही वर्ड बोल सकता हूँ, एक जिंदगी है बोलूंगा। जिंदगी का वैल्यू नहीं लगा सकते। 1 लाख है क्या, 2 लाख है क्या, मिशन का कास्ट कितना है बोल के मेरे को पूछते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, एक मिशन का कास्ट कितना है बोल दो, जो सफरर है उसका हेल्थ का उतना, जो सफरर उसका जिंदगी को गंवाने वाला है उसको वापस खरीद के उसका लिवर को लेके आने वाला हीलिंग होता है। ऐसा हीलिंग के वंडरफुल रिजल्ट्स आपके लाइफ में भी लाके आप भी खुद हेल्दी बने, हैप्पी रहिए। इस भावना से ये जो मेरे को टाइम दिए इसके लिए हर किसी को मैं थैंक्स बोलते हुए ओवर टू डॉक्टर रघु जी। गुड नाइट टू एवरीवन। रियली ग्रेट डॉक्टर रवि, आज आप एकदम नंबर 1 सेशन लिए।
तो ऐसे सेशंस एवरी फ्राइडे हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैं और डॉक्टर रवि साहब मिलके दोनों प्लान करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लीडर्स आज जो प्रोग्राम में हम लोग को सहायता दिए, मुंबई से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स हम लोग साथ जुड़े काम कर रहे हैं। उसमें राजेश भाई है और डॉक्टर मानव पवार है, तो वंडरफुल डॉक्टर है, वो वहाँ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, और उन्होंने और उनके वाइफ दोनों भी। तो ईली में उनका पर्सनली एक्सपीरियंस लेके उनको अच्छा लग के और कुछ सोसाइटी के लिए करना बोल के वो प्रमोट कर रहे हैं। तो डॉक्टर मनोज पवार कुछ जी को और सतीश भाई है और कारकानी जी है, और इस तरीके बोलते गए तो बहुत सारे लीडर्स हमारे मुंबई से जुड़ के हीली को प्रमोट कर रहे हैं। और नॉट ओनली मुंबई, गुजरात से पराग भाई है, और उनको भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट उड़ीसा से डॉक्टर पिल्ले है, वो भी उड़ीसा से फाउंडर है, टाइम वेवर के फ्रीक्वेंसी थेरेपी सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं हमारे से जुड़ के। डॉक्टर पिल्ले सर उड़ीसा से, राउरकेला से है, और इसी तरीके से थोड़े लोग जुड़े हैं राजस्थान से, और थोड़े लोग जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर किरण गोवा से, जो आज इतना बड़ा टीम डेवलप करे और टोटल साउथ इंडिया में टॉप लीडर बने। किरण जी वो हमारे साथ जुड़ के 12 साल से है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। तो एक बात समझिए, ये प्रोग्राम भोपाल से विजय पंडित जी भी है, और बेलगाम से श्रीधर और श्री पाटिल जी, तो और भोपाल से अनूप जी भी है। इस तरीके से बहुत सारे वंडरफुल पर्सनालिटीज है जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं कि ये सोसाइटी में एक गुडनेस को, ये बेस्ट साइंस को प्रमोट करने के लिए और सबको हेल्थ रखने के लिए। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, आज मैं एक प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं हम लोग सोसाइटी में, जो सर्विस आप करते हैं वो सर्विस दुनिया के लिए अच्छा होना चाहिए, दुनिया के लिए भला होना चाहिए। आज इतना पूरा सेमिनार के बाद, जैसे डॉक्टर रवि जी बता रहे थे, एक लिवर खराब होने से जो हीली यूज करने से उनको अच्छा हुआ। मैं ये पूरे सेमिनार में जो हीली का प्राइस हो गया, हीली टेक्नोलॉजी हो गया, वो सब एक बाजू में, मगर एक विषय मेरे को बहुत अट्रैक्टिव है हमारे लाइफ के लिए। जब से हम फ्रीक्वेंसी शुरू करें, जब से कई जिंदगियों में हरा भरा देख रहे हैं, तो ये हरा भरा जिंदगी हम लोग सब मिलके दुनिया को देंगे, और दुनिया में खुशी और सुख बांटेंगे, इस उम्मीद से चंदना जी को वेरी वेरी थैंक्स बोल रहे। वो बहुत कम्युनिकेट करे और हम लोगों को पूरे जुड़ने के लिए वो पीछे से सपोर्ट कर रहे, उनको वन सेकेंड थैंक्स बोलते हुए मैं ये प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल, गुड नाइट टू एवरीवन, सी यू वंस अगेन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे।